ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 18 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा महावाक्यते उमंग उत्साहते থাকতে বলছেন। বাবার মহাবাক্য হইল শিবরাত্রিতে শিবরাত্রির बहुत महिमा। শিব বাবা এই সাকার দুনিয়াতে কলিযুগের শেষ রাত্রি সময়ে আসেন। তার यादगारे महाशिवरात्रि पालन करा হয়। तो महाशिवरात्रिते শিব বাবা এসেছিলেন আজকে থেকে 5000 वर्ष আগে, এখনো আসছেন, ওনার পাঠ চলছে। তো বাচ্চারা বাবার জন্মদিনের বাবাকে বাধাই দেয়, আর সাথ সাথ বাবাও আমাদেরকে কিভাবে বাধাই দেন। তো বাবা আর বাচ্চাদের দুজনের জন্মদিন, কে কাকে মোবারকবাদ দেবে। তো দুজনকে দুজন দিচ্ছে, বাবা বাচ্চাদেরকে দিচ্ছে আর বাচ্চারা বাবাকে দিচ্ছে। এমনি তো বাবা বলেছেন কি অনাদি সন্তান সারা বিশ্বের আত্মা, কিন্তু আমাদেরকে বাবা বলেছেন ব্রহ্মা মুখবংশাবলী আদি রচনা। আদি রচনা হওয়ার জন্য আমাদের সাথে বাবার একটা বিশেষভাবে স্নেহ আছে। তখন বাবাকে ভাববেন যে সবাই তো বাবার সন্তান, আমাদেরকে বাবা এত ভালোবাসেন, তো বাকি বাচ্চাকে, তো বাচ্চার মধ্যেও যে মা বাবার খুব নিকটে থাকে তাদের সাথে একটা আলাদা থাকে। সন্তান হিসাবে তো সন্তান, কিন্তু তার মধ্যেও কি থাকে, নিয়ারেস্ট আর ডিয়ারেস্ট, হ্যাঁ না। তো বাবার সাথে আমাদের যে সম্পর্কটা খুব নিয়ারেস্ট সম্পর্ক, সেই জন্য সতীযুগে আদি থেকে চলে আসছি। পুরা 5000 বছর হয়ে গেল বাবা থেকে আমরা আলাদা হয়ে আছি। এই জন্য বাবা সাথে যখন আমাদের দেখা হচ্ছে তখন বাবার বহুত খুশি যে আমার 5000 আগে যারা আমার থেকে দেখা হয়েছিল সেই বাচ্চাগুলা আমার সাথে দেখা হয়েছে। বাকি আত্মারা পরমধামে থাকে, কিন্তু তাদের সাথে আর আমাদের নিজের সাথে এত তুলনাটা আলাদা আলাদা। এই জন্য বাবা যে বলেন না, কোনো আত্মার সাথে কোনো আত্মার কম্পেয়ার করবেন না, সে ওখানে বোঝা যাচ্ছে বাবার মহাবাক্যের মাধ্যম দ্বারা। তো শুনি বাবার মহাবাক্য। তো বাবা বললেন সদা উৎসাহ মে রাখकर উৎসব মানাও, সব সময় খুশি উমঙ্গে থাকে উৎসব পালন করো। आज विशेषण बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो हो विश्व की सर्व आत्माएं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो सारा दुनिया ही बाबार बच्चा, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप आत्माएं हैं। अति स्नेहीও হইল আর সমীপের আত্মা হইল, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। आदि रचना হইলাম আমরা ब्राह्मण। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्मा बनी है। এই যে আমরা অবতরিত হয়ে বাবার কার্যের মধ্যে আমরাও সহযোগ দিচ্ছি। বাবার সেবার মধ্যে কোনো কিছুতে একটু যদি আপনি হাত লাগাতে পারছেন, নিজেকে নিজে থ্যাঙ্কস দিবেন যে বাবা আমার মধ্যে কি কোয়ালিটি দেখেছে, বা আমার ভাগ্যটা বাবা আমাকে দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছে। আজকে আরও ব্যর্থ সংকল্প বা নেগেটিভ সংকল্প না করে সমর্থ সংকল্প করতে হবে কি বাবা আমাকে নিমিত্ত বানাইলো,
আমার দ্বারা করাইলো, আমার ভাগ্যটা তৈরি করাইলো, থ্যাঙ্কস দিবেন বাবাকে। আর এটা ভাবে না আমি করলাম, আমার আমি করি, আমারে হয়, আমাকেই দরকার পড়ে, এগুলা ভাববেন না, না হলে খাতা থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা যাবে। তো ভাগ্যকে তৈরি করার সময় এইটা সিজনালি আমাদের কর্মফল তৈরি করার সময়, এই সময় ভাগ্য বিধাতা আমাদেরকে ভাগ্য তৈরি করার সময় দিয়েছেন। तो बाबा बोलें, बच्चे बाप की जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह खुशी से नाच रहे हैं। बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और बाच्चारा बढ़ते से देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाच्चारा आगाच्छे और बाबा देखे खुशी होच्छे। तो आप बाप दादा के बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते, आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी सबाई आमादेर साथी एडभांस पार्टी दीदी दादीरा सबाई कोथाय गेছে एडभांस पार्टीते विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। स्नेहते स्नेहरी पुष्प माना फूलों द्वारा वर्षा करते से अर्थात मुबारकबाद दीते से बाप के सन्मुख चाहे चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। যারা বাবার সম্মুখে আছে তাদেরকেও মুবারকবাদ দিলেন, যারা দূরে আছে তাদেরকেও মুবারকবাদ दिलें। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदी रूप की स्मृति रहती है। शिवरात्रि ते भक्तगणरा शिवलिंगम के पूजा करे, शंकर जी के केउ पूजा करे ना, शंकर जी तो निजेई ध्यान करछेन, तो शंकर जी के पूजा करे ना, ওই বিন্দুই সবার মনে থাকে, জ্যোতি বিন্দু। तो जन्नो बोले निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसके शिवलिंग में पूजते हैं, निराकार बाबा के शिवलिंग मने करे पूजा करे, उस बिंदु का महत्व है, ज्योति बिंदु परमात्मा महत्व अच्छे। आप सभी के दिल में भी बाप के रूप की स्मृति सदा रहती है। तो बाप भी बिंदु और आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। बिंदु रूप का महत्व है ना, बिंदु जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली, इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के गुणों के ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। सिंधु माना सागर, ज्ञानेर सागर, शक्तिर सागर, आनंदेर सागर। आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन का विशेष उत्साह से लहर बाप दादा के पास अमृत बेले से पहुँच रही है। आज के जन्मदिनेर जन्य बाच्चादेर उमंग उत्साह बाबार काछे अमृत बेला थेकेई चले आसतेछे। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ शने स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? बाबाओ कोनो झंडा लहराच्छे। आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। आमरा तो शिव बाबार झंडा जे बाबार शिव बाबार जे ज्योति स्वरूपम जे झंडाटा आछे आमरा झंडा बाबार लहराइलाम, किन्तु बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? बाबा की झंडा लहराबे। यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है। एटा बाबार पताका आमरा तुली, এই पताकार मध्य सेवा आछे। निराकार शिव बाबार आमरा पताका तुले सम्मान जानाई और बाबार पताका नीचे आमरा निजे दृढ़ प्रतिज्ञा करी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ? आमरा तो बाबार बाच्चारा शिव जयंतीर झंडा रोहण करलाम,
झंडा लहराइलाम, किंतु बाबा कोथाय और कौन झंडा लहराइले? बाप दादा अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। বাচ্চাদের মতো কত বিশেষতা আছে, সেই বিশেষতাটা দেখে বাবা ঝান্ডা লহরাইলেন। कितने झंडे लहराते होंगे, কত विशेषता আছে বাচ্চাদের মধ্যে, तो কত पताका हो गल। इस दुनिया में इतने झंडा कोई लहरा नहीं सकता। এই সাকার দুনিয়াতে এত পতাকা লাগানো যাবে না। कितना সুন্দর দৃশ্য होगा। ওই দৃশ্যটা মনে করেন যে বাবার যখন ঝান্ডা উঠাইলেন সেই সময় কত পতাকা হবে। সে বাবা আমাদের গুণার শক্তির পতাকা। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। प्रत्येकटा बाच्चार मध्य विशेषता আছে। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया। আমরা শুধু ঝান্ডা बाबा उठाई नहीं, बाबा उठिए, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है ना। पताकार मध्य जे फूल थाके से फूलगुला ऊपर दिके पड़े ना, माथार ऊपरे वर्षा होती है ना। बाप दादा भी आज बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं। तो कौन सा वर्षा होता है? हर एक बच्चे के ऊपर बाबा जखन झंडा लहराइलेन तखन कि हইল? झंडा उठानो समय देखा गेल जखन पताका खुललो तखन बाच्चादेर उपरे कि बृष्टि होच्छे। आमरा जखन झंडा उठाई तखन कि हय? फूल थाके, कोनो समय चकलेट थाके, আর কিছু গিটিংস থাকে, সেগুলাও বের হয়ে যায়, হ্যাঁ না। ফুলোর বিশেষ ফুলের বৃষ্টি হয়। তো বাবা যখন বিদেশটা ঝান্ডা উঠাচ্ছেন তখন কি বের হচ্ছে? हर एक बच्चे के ऊपर, प्रत्येकटा बच्चार उपरे अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार मनाते हैं। लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहे। कत समय থেকে बाबा आमादेर থেকে आलादा छिलेन। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती है, अनेक आत्माएं थाके, लेकिन पहली रचना की आत्माएं जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। बाबा जखन अवतरीन हन तारपरे आमरा मिली। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिले तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपने आदि रचना से भी फिर से मिलने आए। आप सोचो, हमें बाप मिला और बाप कहते हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो, क्षत्रिय नहीं हो। सभी सूर्यवंशी रचना हो, ब्राह्मण अर्थात देवता हो। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। डबल नशा रहता है, डबल खुशी में रहो। डबल नशा चढ़ाइते बोलें बाबा। ब्राह्मण जीवन विशेष जीवन, ब्राह्मण सो देवता हওয়ার जन्म। और बाबा आमादेर के विशेष की दिलेन, ब्राह्मण जीवन में एक है सेवा,
दूसरा क्या होता है, माया आती है। माया का सुनकर खुशी होते, क्योंकि समझते हो माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। माया যখন আসে তখন খুশি হইতে লাগবে যে মায়ার সাথে আমার খুব ভালোবাসা আছে। आपका प्यार नहीं, उसका प्यार है। আমাদের মায়ার সাথে प्यार नहीं, মায়ার আমাদের সাথে प्यार আছে। उत्सव में खेल देखा जाता है ना, आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद होता है? हाँ, तो खेल कौन सा पसंद है? खेल करते हैं ना, मिक्की माउस का खेल बहुत होता है, एडवर्टाइज भी होता है। मिक्की माउस का खेल देखो, चाहे मैच पसंद करते हो, चाहे माऊ मक्कीस का खेल पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो? खेल में माया आती है। भिन्न भिन्न प्रकार का खेल होता है। खेल देखने में घबराओ नहीं, खेल देखते भी हो, कोई सोचते हैं कि गेंद मेरे पास न आ जाए। केउ केउ भावे যখন गेंद खेले ना फुटबल, तो फुटबलटा आमार काछे जेनी ना आसे जाए, आमाके जेनी व्यथा ना पाए जाए, नेगेटिव भावे नाई, परिस्थिति आमार काछेई ना आसे जाए, ना आसबे ना, आसलेও आमी पार करते पारी, कलप पहले पार करेছি, पॉजिटिव संकल्प। आप जैसे शुद्ध भोजन खाते हो, दुनिया में कोई शुद्ध भोजन पाए ना, और शुद्ध भोजन ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मणों के बाबा के याद में बनाया हुआ भोजन, সেই ভোজনটা স্বীকার করলে আমাদের তন আর মন দুটাই সুস্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মা ভোজন पर बहुत बड़ा प्रभाव আমাদের উপরে পড়ে। এই জন্য বাবার ঘরে প্রসাদকে সব সময় তকমস্তক রাখতে হয়। অর্থাৎ বাবার ভোগ, বাবাকে দেওয়া জিনিসটা আমি একটু পাইলাম, সেই উপরে আমাদের খুব ভাবনা শ্রদ্ধা সবার হইতে লাগে। সেই বাবাকে নিবেদন করা ভোগটা আমি একটু মুখে দিতে পারলাম, আমার কত সৌভাগ্য। তো নিজেকে সব সময় থ্যাঙ্কস, সৌভাগ্য, উমঙ্গ, উৎসাহ, পর্ব আসা মানেই উমঙ্গ উৎসাহ। তো আমাদের ব্রাহ্মণদের প্রতিদিনে সদাই উমঙ্গ উৎসাহতে থাকতে বললেন বাবা। উমঙ্গ উৎসাহ আমাদের ব্রাহ্মণের জীবন, ব্রাহ্মণ জীবন হইল আগে বাড়ার জীবন। তো সবসময় উমঙ্গ উৎসাহ নিয়ে আগে বাড়তে হবে। अगर कमजोरी का संकल्प बाप के आगे रख दिया तो जब दे दिया तो फिर उसे लेना नहीं है। जेटा दिए दिलेन ताके निजेर मने करा जाबे ना, नेওয়া যাবে না। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनाने के लिए उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने में उमंग को देख हर्षित हो रहे हैं। বাচ্চারা উমঙ্গ উৎসাহ দিয়ে বাপকে প্রত্যক্ষ করছে, তো বাবারও খুশি হচ্ছে। अच्छा सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव उत्साह समान उत्सव मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बनकर के चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही त्रिकालदर्शी बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और नमस्ते, याद प्यार और मुबारक, याद प्यार और मुबारक। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता बनो। कारो कमी कमजोरी ना देखे, सबार मध्य कमी कमजोरी आछे, किन्तु कारो कमी कमजोरी ना देखे निजेर मध्य कोनो गुण आछे, भालो जिनिस आछे, ओटाके दिए सामने वाला के मदद करो। मास्टर दाता वह है जो सदा इस रूहानी भाव में रहते,
कि सर्वरूह हमारे समान वर्ष के अधिकारी बन जाए। सर्वरूह माना आत्मा वर्षार अधिकारी हुए जा। किसी की भी कमी कमजोरी को न देखो, कारो मध्य यदि कमी कमजोरी आसे ओटाके देखार आमादेर अधिकार नहीं। वे अपनी धारणा किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते या ऐसे ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। और ओके आमार देखा दरकार नहीं, आमार की भावना ओटा देखते लगबे। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी हैं, अशांति से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन: मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। मन वचन कर्म तिके सेवा कराटाई हইল निरंतर, अंतर जनी ना है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। प्रत्येकटा निश्वासे सेवा आछे। निश्वास छाड़छि निচ্ছি, এইভাবে আমাদেরকে निश्वासे निश्वास बाबाके बाबार सेवाते हमारा निजेके লাগিয়ে রাখতে হবে। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपनी आकारी स्वरूप में स्थित हो। आकारी स्वरूप साकारीते आकारी एसे जेते होबे। आकारी ब्रह्मा बाबा तो हमादेरके आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट के पहाड़ पर खड़े हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शतो प्रधान बनाने की सेवा करें। आज के दीदी मनमोहिनी जीर विशेषता हইল 18 नंबर। ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट, एक्यूरेट और अलर्ट छिलेन। दादी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा पर रहता। केउ सेवा करे ना, एक दिके जेखाने आसे ओखानेई नजर राखबे, चारों दिके राखबे ना, किन्तु दीदी चारों दिके ध्यान रखतें। ऑलराउंडर। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारा में चक्कर लगाती। मुरलीर पश्चाते उनी भंडाराते जाइतें और चक्र लगाइतें और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भर दी थी। एक्यूरेसी ओनार जीवने कूटे कूटे माने एकदम ठेसे ठेसे भरे दिसिलो बाबा। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती थी। आज के दीदी मनमोहिनी जीर विशेषता ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा पर रहती, चारों दिगे नजर रखते। वे मुरली क्लास के पश्चात भंडारा में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भर दी थी। दीदी मध्य এই विशेषतागुला बाबा एकदम কিভাবে ভরে দিছিলেন, সেট করে দিলেন, একদম ঠিক ফিট করে দিছিলেন एकदम। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती।
कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी, आज नहीं कल कर लेंगे। जो सेवा जब जरूरी है उसी समय उसे अलर्ट बनकर की और कराई। अलर्ट থাকে করলো আর করাইলো। দিদি মধ্যে এই বিশেষ গুণ ছিল। এই জন্য দিদি দিদি কৃষ্ণের আঙ্গুল ধরে চলবে। বাবা একদিন বলছিলেন না, বিশেষতা আমাদের ছিল না, যে কৃষ্ণ আজকে বাবার আঙ্গুল দিদি ধরছে, কৃষ্ণ দিদির আঙ্গুল ধরবে। তো এই বিশেষতাটা দিদিদের মধ্যে ছিল। यज्ञ माता यज्ञ বাদশাকে কিভাবে সামলাইলেন। তো বিশেষ আমরা নিজের উপরে নজর রাখবো। ওম শান্তি।